Hello everybody, very good morning to all. As you all know that in the previous video we had started chapter number 8 of your textbook Honeybee or Short Monsoon Diary. It's written by a very well-known Indian English writer who is Ruskin Bond, and he talks about a particular place that is Himachal, and he mentions whatever he observed in his life. तो 115 पर हम पहुंचे हैं. We have to start from page number 115 part 2. हमने 3 दिन पहले देखे. 3 दिनों का उन्होंने डायरी में डिस्क्रिप्शन लिखा. जून 24, जून 25, जून 27. अब जून खत्म हो गया. जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त. अब जुलाई के लिए कुछ नहीं लिखा. अब सीधा अगस्त में आ जाता है. Let us see what he has to say. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. There has been no storm, no thunder, just steady swish of a tropical downpour. It helps me to lie awake. At the same time, it doesn't keep me from sleeping. पूरी रात बारिश की बूंदें. वो ऊपर एक रूफ था टीन का. टीन यानी we call it पत्रों गुजरात. टीन रूफ पर गिर रहा है. बारिश की बूंदें गिर रही थी लगातार. कोई तूफान नहीं है, कोई थंडर नहीं है, बस ट्रॉपिकल एरिया है और डाउनपोर यानी बारिश चालू. इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक. और वो क्योंकि टप 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 चालू रहता है, राइटर सो नहीं पाता. एट द सेम टाइम इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग. लेकिन नींद भी आती है साथ में. क्यों नींद भी साथ में आती है? बिकॉज द वेदर इज वेरी कोल्ड. It is a good sound to read by. The rain outside, the quiet within. बाहर बारिश, अंदर एकदम शांति. And although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. क्योंकि रूफ में से कुछ होल्स है और होल्स में से बारिश की बूंदें गिर रही. ठीक है, बारिश की बूंदें गिर रही, लेकिन उतनी बूंद से वो भीगेंगे नहीं. तो इसलिए कहते हैं कि he remains untouched by the rain. At the same time, he feels like being touched, क्योंकि बाहर की ओर तो बारिश है. August 3, the rain stops. बारिश रुक गई है. The clouds begin to break up. The sun strikes the hill on my left. A woman is chopping up sticks. I hear the tinkle of cowbells. In the oak tree, a crow shakes the raindrops from his feathers and caws disconsolately. Water drips from a leaking drain pipe, and suddenly clean and pure the song of the whistling thrush emerges like a dark sweet secret from the depth of the ravine. ravine यानी वैली. बारिश रुक जाती है, क्लाउड्स बिखरना चालू हो जाते हैं, सन राइज होता है ना. एक वुमन है जो स्टिक्स काट रही है. काउ बेल्स, काउ को जो गले में वो बांधी होते घंट, उसकी आवाजें आ रही है ना. वहां पर एक बहुत सारे ओक ट्रीज भी है. ओक ट्री पर एक कौवा बैठा है, काउ काउ कर रहा है. पानी जो है इट ड्रिप्स फ्रॉम ए लीकिंग ड्रेन पाइप. गटर का जो पाइप था उसमें से थोड़ा पानी ऐसे आ रहा है क्योंकि वहां लीकेज था. अचानक से एकदम क्लीन, एकदम प्योर आवाज कहीं से सुनाई देती. August 12, it's endless rain and a permanent mist. We haven't seen the sun for 8 or 9 days. Everything damp and soggy. पूरा यानी डल है सब और थोड़ा वेट है कि बारिश बहुत और मिस्टी भी है, धुंधला है थोड़ा. Nowhere to go. Pace the room, look out of the window at a few bobbing umbrella. बस रूम में से बाहर आओ, विंडो के नजदीक जाओ, विंडो में से बाहर कुछ लोग जो अम्ब्रेला लेकर घूम रहे वो दिखता है. At least it is not cold rain. The hillside are lush as late monsoon flowers begin to appear. Wild balsam, dahlias, begonias and ground orchid. ये सारे फूल के नाम, प्लांट्स के नाम जो इस टाइम पर ग्रो होते हैं. ज़्यादा ठंडा नहीं है वेदर, लेकिन बारिश बहुत है. एंडलेस रेन.
It is the last day of August and the lush monsoon growth has reached its peak. The seeds of the cobra lily are turning red, signifying that the rains are coming to an end. अगस्त का लास्ट दिन है और मॉनसून के कारण, बारिश के कारण इतनी हरियाली हो गई कि एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल। सीड्स जो है कोबरा लिली के प्लांट्स के, दे आर टर्निंग रेड, और इसका मतलब ये है कि रेनी सीजन खत्म होने वाली, ये लिखा है। In a few days the ferns will start turning yellow, but right now they are still form green and upright. थोड़े दिनों में जो ferns होते हैं, ये भी छोटे छोटे प्लांट्स, वो येलो हो रहे हैं लेकिन अभी भी डटे हुए हैं वहां पर। ग्राउंड ऑर्चिड्स, माउज, लेडी स्लीपर and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slopes of Landor. Wild dahlias, red, yellow and magenta, rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold. ये सारे अलग अलग फ्लावर्स और प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, वही बात हो रही है। कुछ बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, माउ, लेडी स्लीपर, ये भी कुछ इंसेक्ट्स का ही नाम है, वो सब दिख रहे हैं, सॉरी प्लांट्स का नाम है। Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows take shelter in roof, attic and go down। हर जगह पर माहौल ऐसा है कि स्नेक और वो सब रोडेंट्स वो सब निकल चुके हैं। A shrewd weak of eyesight blunders about the rooms much to the amusement of the children। एक छोटा सा जिसकी आंख कमजोर है ऐसा एक रोडेंट घर में बच्चों ने देख लिया है और बच्चे उसको देखकर खुश हो रहे हैं। Don't kill it, admonishes their grandmother. Chuchundars are lucky, they bring money. चचुंदर्स जो होते हैं वो घर में रहने दो, वो लकी होते हैं, पैसे आए। And sure enough, I receive a check in the mail, not a very large one, but welcome all the same. उसके जैसे ही बोला कि ये तो मनी मिलती है चचुंदर को हार्म मत करने से, तो मिली भी, चेक मिला। We have gone straight from monsoon into winter rain, snow at higher altitude, अक्टूबर 3 को। ठंडी के कारण थोड़ी बारिश शुरू हो चुकी और हाइट पर बहुहिली एरिया में तो बर्फ भी हो चुका। आफ्टर एन इवनिंग हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म यानी बर्फ का तूफान, द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड विद अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट। क्योंकि सनलाइट के कारण मस्त व्हाइट स्नो पर गोल्डन लाइट गिरती। Water rains in the hills, in the hushed silence of the house when I am quite alone and my friend who was here has gone. It is very lonely, very quiet, as I sit in a liquid silence, a silence within. यानी ये पोएम जनवरी 26 को ही एकदम शांत है, घर में वो अकेले है, मेरे फ्रेंड मेरे साथ था, वो भी चला गया। Surrounded by the rhythm of rain, the steady drip, एकदम धीरे धीरे असल बारिश आ रही, drift of water on leaves, on lemons, on roof, drumming on drenched dahlias and window panes। यानी ये जो पानी है, पानी विंडो पर दिख रहा है, लेमन्स के प्लांट से वहां पर रूफ पर गिर रहा है। While the mist holds the house in a dark caress, as I pause near a window, the rain stops and starts again। विंडो के पास खड़े रहते हैं, बारिश रुकती है, फिर से शुरू होती है। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे मिनेस मी विद देयर लोनलीनेस। पेड़ इतने हरे हैं, इतने ज्यादा हरे नहीं, थोड़े ग्रे लग रहे हैं विंटर में, और मिनेस का मीनिंग है थोड़ा उनको डर लगता है। March 23, late March, end of winter, the blackest cloud I have ever seen squatted over Mussoorie। यानी आसमान में पूरा काला बादल छा चुका है, ऐसा कभी राइटर ने नहीं देखा है। And then it held marbles for half an hour। अब marbles का मीनिंग यहाँ पर है कि स्नो, आधे घंटे के लिए स्नोफॉल होता है। Nothing like a hailstorm to clear the sky। Even as I write, I see a rainbow forming। है ना, Nothing like a hailstorm to clear the, यानी आसमान जैसे खाली हो जाता है hailstorm के साथ। जब राइटर ये लिख रहे हैं, एक रेनबो फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है कि अब ये भी हेलस्टॉर्म भी अब बंद हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट
वीडियो में होपफुली नया चैप्टर हम चालू करेंगे दूसरी बुक में से। तो हैव अ गुड टाइम, थैंक यू, जय हिंद।